स्टार्ट करो। हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट करो जी। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें खुद बंदे की बात क्यों अ, ठीक है मैम, ठीक है जी, एवरीथिंग ओके, प्लीज स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुनीता गोयल फ्रॉम गवर्नमेंट ITI वुमेन Chowali, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब, माई स्टेट पंजाब। Today's my topic is operational amplifier. Operational amplifier means op-amp. ਅੱਜ ਅਸੀਂ operational amplifier ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Operational amplifier. Operational amplifier referred as op-amp. Operational amplifier ਨੂੰ ਅਸੀਂ op-amp ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। It is high gain direct couple differential amplifier, ਜੋ ਕਿ हाई गेन वाला direct couple amplifier है, designed to amplify both AC and DC. Operational amplifier एक amplifier है जो AC ਤੇ DC दोनों सिग्नल पे काम करेगा। ਅਸੀਂ इनपुट ਤੇ चाहे AC दे दिए ते चाहे DC दे दिए, दोनों पे वर्किंग सेम होगी। It is commonly used to do mathematical operations. It is commonly used to do mathematical operation. Amplify ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ operational amplifier ਹੈਗਾ, mathematical operation ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Mathematical operation means addition, subtraction, integration, comparison or derivation. Operational amplifier ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Operational amplifier op-amp is a voltage amplifying device. ਆ voltage ਨੂੰ amplify ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। इनपुट ऐसे जो वोल्टेज सिग्नल दिंदे हैं, चाहे AC होवे ते चाहे DC होवे, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਦੇਗਾ। It is designed to be used with external feedback component. Feedback means ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ। आउटपुट ਤੇ इनपुट टर्मिनल ਨੂੰ ਅਸੀਂ फीडबैक कंपो ਨਾਲ जोड़ांगे। op-amp is an integrated device. Integrated device means IC. Operational amplifier ਸਾਨੂੰ IC ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। IC means number of component on a single chip. ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਿਪ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ IC ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਨਬਿਲਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ op-amp ਇੱਕ IC ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਇਟ ਨੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਪਰਫਾਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਅ ਸਿਗਨਲ। ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। इंट्रोडक्शन के बाद ਅਸੀਂ ब्लॉक डायग्राम ਦੇ op-amp ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। op-amp ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ 4 ਸਟੇजेस ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 4 ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ, ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਟੇਜ, ਫੋਰਥ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਜ। ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ਨੂੰ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਨੋਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਪੁਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ op-amp ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ, ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਇਨਵਰਟਿੰਗ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਮਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ आउटपुट ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਸਿਗਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਜ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਲੈਵਲ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਟੇਜ DC ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਪੁਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਜ। ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਜ
The inverting and non-inverting inputs are provided to the input stage, which is a dual input balanced output differential amplifier. Means input stage ਦੀਆਂ ਦੋ input ਹੈਗੀਆਂ, inverting ਤੇ non-inverting input, ਤੇ ਇੱਕ output ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਆ ਇੱਕ differential amplifier ਹੈ. Means दोनों इनपुट का डिफरेंस सानू एम्पलीफाई करके आउटपुट दे देगा. सेकंड, voltage gain required for the amplifier is provided in this stage along with the input resistance for an op-amp. op-amp ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੇਨ ਮੀਨਸ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਡਬੈਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ input resistance ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ. Positive sign is for the non-inverting input, negative is for the inverting input. Non-inverting input ਲਈ positive sign ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ negative sign inverting input ਲਈ ਤੇ positive sign non-inverting input ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. Non-inverting input ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Non-inverting मतलब no invert, ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, चेंज फेस नु नहीं करेगी. नॉन इनवर्टिंग ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਏਸੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨॉन ਇਨवर्टिंग ਦੀ ਜੋ ਆउटपुट आएगी इन फेस आएगी, फेस ਵਿੱਚ ਕੋਈ भी चेंज नहीं आएगा. ये डीसी ਦੀ ਗੱਲ करिए, ये पॉजिटिव डीसी वोल्टेज है तो आउटपुट ਤੇ पॉजिटिव ही आएगी, जे नेगेटिव है तो आउटपुट पे नेगेटिव आएगी. तो इन केस ऑफ इन्वर्टिंग सिग्नल इनपुट यदि ਅਸੀਂ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दवांगे एसी विच आउट ऑफ फेस होएगी, सिग्नल आउटपुट ते 180 डिग्री, डीसी विच पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी. सेकंड इज इंटरमीडिएट स्टेज. इंटरमीडिएट स्टेज सेकंड स्टेज है जो कि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है. इनपुट स्टेज भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर सी ते इंटरमीडिएट स्टेज भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है. जो इनिशियल स्टेज दी आउटपुट हैगी है वो ਅਸੀਂ इंटरमीडिएट स्टेज ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ. तो जो ਇਹਦੀ आउटपुट है ਅਸੀਂ थर्ड स्टेज ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ. लेकिन जो फर्स्ट स्टेज ਦੀ इनपुट सेकंड स्टेज ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ डायरेक्ट कपलिंग यूज ਕਰਾਂਗੇ. डायरेक्ट कपलिंग मींस ਅਸੀਂ कुछ भी कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट नहीं बर्तन विच लियावांगे, कुछ भी यूज नहीं करांगे. डायरेक्ट कपलिंग के कारण ही जो डीसी वोल्टेज है जो आउटपुट पे मिलेगा वो चेंज हो जाएगा, जो ग्राउंड पोटेंशियल से अबव हो जाएगा, कुछ डीसी कंपोनेंट ऐड हो जाएगा. डीसी लेवल at its output must be shifted to down to 0 volt with respect to ground. जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਪਲਿੰਗ मतलब कि फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ डायरेक्ट कपलिंग यूज कर रहे हैं, जिस करके एम्पलीफाई तो होएगा लेकिन नाल दे नाल डीसी लेवल भी चेंज हो जाएगा. लेवल शिफ्टिंग स्टेज थर्ड स्टेज जो ਅਸੀਂ सेकंड स्टेज ਵਿੱਚ किया कि डीसी लेवल चेंज हो जाएगा डायरेक्ट कपलिंग करके. उसमें ਅਸੀਂ जो शिफ्ट होया है लेवल शिफ्ट होया है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज ਉਹਨੂੰ वापस ग्राउंड लेवल पे लिया दे, 0 वोल्ट पे लिया दे. Due to direct coupling between first and second stage, the input of the level shifting stage is the amplified signal with non-zero DC level. जो input होएगी non-zero DC level होएगी जिसਨੂੰ level shifting stage bring to DC level to 0, जो कि वापस 0 वोल्ट पे ले आएगा. फोर्थ एंड लास्ट आउटपुट स्टेज. लेवल शिफ्टिंग सिग्नल is then given to the output stage. Output stage is a push-pull amplifier. Increases the output voltage swing of the signal. Also increases the current supplying capability of the op-amp. आउटपुट स्टेज ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਪੁਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈਂਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵਧਾਏਗਾ. It is normally in complementary mode.
It increases the magnitude of the voltage and raises the current supplying capability. It also ensures that output resistance of the op-amp is low. जो आइडियल एम्पलीफायर ਹੁੰਦਾ है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट इंपीडेंस ਅਸੀਂ 0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ लेकिन प्रैक्टिकली वेरी लो ਹੁੰਦਾ है पुश पुल एम्पलीफायर ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆउटपुट ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਲੋ ਰਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਟੇजेस ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐम्पलीफायर जो कि सिंपल डायग्राम शो कर रहा है कि एम्पलीफायर है छोटी ਅਸੀਂ इनपुट ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆउटपुट ਸਾਨੂੰ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਲੀਫਾयर ਦੇ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਨॉन ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਪੁਟ। ਦੋਨਾਂ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ या एक ते दे रहे हैं दोनों पे दे रहे हैं तो क्या किस टाइप में दे रहे हैं सेम दे रहे हैं या अलग अलग दे रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि वो किस मोड विच काम कर रहे हैं। उसके बिहाफ पे ਅਸੀਂ तीन टाइप के मोड लेने हैं op amp ਦੇ सिंगल एंडेड मोड डबल एंडेड मोड कॉमन मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल एंडेड मोड सिंगल एंडेड मोड विच ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। If the input signal is applied to only one of its input, only one input te asi input signal ditta and other input terminal is connected to ground te second wale terminal nu asi ground kitta it is said to be operating in single ended mode ta asi kamange ki sada op amp single ended mode vich kam kar reha hai jive ki diagram vich dikhaya gaya hai। पॉजिटिव ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਤਾ ਪॉजिटिव ਸੀਗਾ ਟਰਮੀਨਲ ਨॉन ਇਨਵਰਟਿੰਗ 네ਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਇਨਵਰਟਿੰਗ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਅਸੀਂ AC ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ 네ਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਪॉजिटिव ਨੂੰ ਅਸੀਂ AC ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ नॉन इनवर्टिंग पे ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਸਿਗਨਲ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਫੇਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡਡ ਮੋਡ। ਨਾਓ ਡਿਸਕਸ ਡਬਲ ਐਂਡਡ ਮੋਡ। ਡਬਲ ਐਂਡਡ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਡ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਪਲੀਫਾयर यूज ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਐਂਡਡ ਮੋਡ ਹੀ यूज ਕਰਾਂਗੇ। In differential mode, two opposite polarity signal दो input दबाएंगे दोनों की polarity opposite होगी applied to two inputs of the op amp। operational amplifier दी दो inputs ते ਅਸੀਂ opposite polarity दी input signal दबाएंगे difference between the input signal is amplified appear at the output। जो दो ਅਸੀਂ input दबाएंगे opposite polarity विच दबाएंगे मतलब कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेस दवांगे दोनों का डिफरेंस सानू आउटपुट पे मिलेगा। देखो नेगेटिव कैसे 1 दी पॉजिटिव ते V2 दी दोनों आउट ऑफ फेस है आउटपुट पे सानू डिफरेंस दोनों का आउटपुट पे मिल गया। थर्ड वन इज कॉमन मोड। कॉमन मोड एक सप्लाई दवांगे इनवर्टिंग ਤੇ नॉन इनवर्टिंग मोड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ AC ਸਿਗਨਲ ਦੇਗਾ। In the common mode of the operation, the same input signal is applied to both the input terminal. Input terminal ਤੇ same signal ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਵਾਂਗੇ। Ideal case ਵਿੱਚ zero voltage should be produced by the op amp। Ideal op amp ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ common mode ਵਿੱਚ output ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ लेकिन प्रैक्टिकली very low output we receive। ਅਸੀਂ एग्जांपल ਲਈਏ ਜੇ 5 ਵਾਟ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 0.025 ਵਾਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ op amp ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ। ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ
ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਥ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, इंटीग्रेशन ते डिफरेंशिएशन। मैथ ਦੇ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। एप्लीकेशन ओपेनवियम, ओपन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लीनियर और एनालॉग सिस्टम। बेसिक ब्लॉक है लीनियर ते एनालॉग सिस्टम का। इट हैज काउंटलेस एप्लीकेशन। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मतलब कॉमनली लगभग सारे सर्किट विच यूज हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन लीनियर एनालॉग सिस्टम विच किथे किथे यूज हो रहे हैं। नॉन लीनियर तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ हैं? आउटपुट प्रोपोर्शनली इनपुट ਦੇ ਨਾਲ चेंज नहीं होएगी। आउटपुट ਤੇ इनपुट विच कोई लीनियर लिंक नहीं होएगा। इस एप्लीकेशन विच open the comparator, rectifier, clipper, clamper, log and anti-log amplifier, multiplier on. Second one, linear circuit. Linear circuit means output varies with input signal in a linear manner. Output proportionally linear they increase या decrease होएगी। Inversely proportional भी हो सकती है, ते proportionally भी हो सकती है। The linear application which की आएगा जी? Adder, subtractor, voltage to current converter, current to voltage converter, differentiator, integrator, differential amplifier, instrumentation amplifier। Operational amplifier का systematic diagram है। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल भी कह सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ इंजीनियरिंग ड्राइंग ਦੇ ਵਿੱਚ पूछा जाता है कि ओपन का सिंबल ड्रा करो, आ वाला ड्रा होगा। एरो होएगा, दो इनपुट्स होंगे, एक आउटपुट होएगी, दो सप्लाईज है जो डीसी सप्लाईज है। फर्स्ट पॉजिटिव सिग्नल शो कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नेगेटिव शो कर रहे हैं इन्वर्टिंग आउटपुट, डीसी सप्लाई पॉजिटिव, डीसी सप्लाई नेगेटिव, जो बाइसिंग का काम करे। अच्छी 741 आईसी 741 जो कि जनरल ओपन वास्ते यूज की जाती है, उसके बारे में कुछ लाइनें दस रही है। तुहानू मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट है कंप्राइजिंग ऑफ ए जनरल पर्पस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन वांगू काम विच लाई जाती है। इट वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय Fairchild Semiconductor in the year 1963। Fairchild Semiconductor ने यानी मैन्युफैक्चरिंग 1963 विच सब तो पहला की सी। जो 1963 विच Fairchild Semiconductor ने की सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ MU A741 बोल रहे हैं। जो आजकल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ LM741 और नेशनल सेमीकंडक्टर। थर्ड पॉइंट द नंबर 741 नंबर 741 इंडिकेट जो 741 में उनके तीन अक्षर नहीं है गिनती में। आपके आप एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रहे हैं, पिन कॉन्फ़िगरेशन दस रहे हैं 741 आईसी। चलो मैं पहले दस ना कर कि जो 741 आईसी है वो 8 पिन आईसी है, लेकिन 741 सानू इंडिकेट कर रहा है कि 7 पिन यूज हो गया। जो 8वीं पिन है नॉट कनेक्टेड और आगे जो पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एनसी लिखा होगा। 4 इंडिकेट कर रहे हैं 4 इनपुट सिग्नल, 1 इंडिकेट कर रहे हैं आउटपुट सिग्नल। 7 पिन यूज having 4 input signal 1 output signal। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 दी फुल फॉर्म कह लो या जो इंडिकेट कर दे तीनों डिजिट वो एस टाइप नाल हैगे। 741 आईसी देखण एस टाइप दी हुंदी है। 8 पिन मैं तुहानू दस्सिया 1 2 3 4 एक पासे दूजे पासे 4 हैगे जो सानू दिख नहीं रहे हैगे।
आ ब्लैक सर्कल जो लग्या होया है, गड्ढा कह लो, छोटा जा डॉट कह लो, इस पासे जेडी आई पिन होएगी वो पिन नंबर 1 होगी। 1 2 3 4 ਤੇ बैक साइड तो 5 6 7 8 इस टाइप का सानू देखने को मिलती है। पिन डायग्राम इस टाइप है 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट एंड फिफ्थ पिन ऑफसेट नल, सेकंड पिन इन्वर्टिंग इनपुट नेगेटिव वाली, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 4 माइनस डीसी सप्लाई जो दे रहे सी, पिन नंबर 6 आउटपुट, पिन नंबर 7 पॉजिटिव सप्लाई। इस दे नाल मैं तुहानू दसां इनपुट वोल्टेज जो रेंज हैगी है पॉजिटिव ते नेगेटिव दी वो हुंदी है -15 वोल्ट तो लेके +15 वोल्ट। मतलब कि असी पिन नंबर 4 ते -15 दवांगे तां पिन नंबर 7 ते असी +15 दवांगे ते पिन नंबर 4 ते -15। जेडी कॉमन मोड विच वरतांगे तां इत्थे -12 दवांगे ते 7 ते +12। कॉमनली ਜਿਹੜੀਆਂ आईसीज ऑप एम को यूज कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ LM358 LM339 LM258 LM324 ਮਾਈਕਰੋ A742 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ LM742। ਅਸੀਂ ਪਿਨ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਪਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। देखो जी 8 नंबर पिन का कनेक्शन नहीं होया, नॉट कनेक्टेड। पिन नंबर 1 ते पिन नंबर 5 ऑफसेट नल है। पिन नंबर 2 ते नेगेटिव टर्मिनल इनवर्टिंग इनपुट है। पिन नंबर 3 ते पॉजिटिव नॉन इनवर्टिंग नेगेटिव सप्लाई। पिन नंबर 4 पिन नंबर 7 पॉजिटिव सप्लाई ते इस दे नाल ही पिन नंबर 6 आउटपुट टर्मिनल। करैक्टरिस्टिक्स देखिए तो ਅਸੀਂ ओपन ਦੀਆਂ आइडियल ਤੇ प्रैक्टिकल। आइडियल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ कि यार इनपुट आ होएगी आउटपुट आएगी एवं वर्क करेगा, परफेक्ट कंडीशंस लेके जाते हैं। लेकिन जो ਅਸੀਂ प्रैक्टिकली उस पे काम करते हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स कुछ कमियां आती हैं जो दूर करना पॉसिबल नहीं होता। आइडियल फॉर्म में जो ਅਸੀਂ अज्यूम करके चलते हैं, प्रैक्टिकली जो एक्चुअली ਹੁੰਦਾ है असल ਵਿੱਚ ਤਾਂ आइडियल दुनिया 'ਚ कुछ भी नहीं हैगा। आइडियल ਤਾਂ सिर्फ अजम्पशन हैगी है, ਸਾਡੀ सोच हैगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ਅਸੀਂ वोल्टेज गेन देखिए। वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है सिग्नल मिल रहा है और इनपुट नाल भाग कर दिए जो साडे कोले वैल्यू आएगी वो आएगी वोल्टेज गेन। आइडियल केस विच ਅਸੀਂ इनफाइनाइट लेके चलते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिहदी कोई भी लिमिट नहीं हैगी, कोई भी सीमा नहीं हैगी। प्रैक्टिकली लेस देन 1 लाख बैंडविड्थ। सेकंड पॉइंट बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज। कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज पे साडा ऑपरेशनल एम्पलीफायर परफेक्ट काम करेगा, स्मूथली काम करेगा, सानू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आइडियल केस विच तां कोई भी फ्रीक्वेंसी आ जाए परफेक्ट काम करेगा, इनफाइनाइट हो। प्रैक्टिकली मैक्सिमम 1 मेगाहर्ट्ज 0 वोल्ट ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 0 वोल्ट फ्रीक्वेंसी तो लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक स्मूथली काम करेगा। एज ए रिस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल केस विच इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली काफी लार्ज है, वैल्यू काफी है 2 मेगा ओम मतलब 2 गुना 10 की पावर 6 ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल केस विच 0 है, प्रैक्टिकल केस विच लेस देन एंड इक्वल टू 50 ओम मींस ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ, ਨॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर,
समिंग एम्पलीफायर, कंपैरेटर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर उसनू लवांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव ते सिग्नल दे रहे हैं ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ। ਆ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, नेगेटिव ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, आउटपुट लिखती है। जो ए ਇੱਥੇ शो कर रहे हैं और गेन शो कर रहे हैं एम्पलीफायर ਦਾ जो गेन है V2 इनपुट है, गेन ਨੂੰ इनपुट ਨਾਲ गुना करके मल्टीप्लाई करके ਸਾਨੂੰ आउटपुट मिलेगी। नेगेटिव शो कर रहे हैं आउटपुट ਤੇ इनपुट ਦਾ जो फेज डिफरेंस होएगा 180 डिग्री होएगा, आउटपुट मिलेगी 180 डिग्री फेज शिफ्ट। प्रैक्टिकली डायग्राम आ कह सकते हैं दिख रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया हैगा RF, इनपुट रेजिस्टेंस RIN, RF 100 किलो ओम लिखती है वैल्यू, इनपुट ऐसी 10 किलो ओम लिखती है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टाइप है which produce output which is out of phase, जो आउटपुट है और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। फार्मूला लिखिए V आउटपुट इक्वल माइनस A मल्टीप्लाई V इनपुट, इनपुट नु गेन नाल मल्टीप्लाई करिए आउटपुट मिलेगी ते माइनस विच मिलेगी। गेन की हुंदा है RF अपॉन Rin, RF मींस फीडबैक रेजिस्टेंस, Rin मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, माइनस फेज शो कर दे आउट ऑफ फेज। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ एग्जांपल ਲਈਏ RF ਲਿੱਤੀ ਹੈ 100 किलो, Rin ਲਿੱਤੀ ਹੈ 10 किलो, RF ਨੂੰ Rin ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10, मतलब कि इनपुट ਨੂੰ 10 गुना करके आउटपुट ਦੇ मिलेगा। नेक्स्ट इज नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इनवर्टिंग ਵਿੱਚ नेगेटिव टर्मिनल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ग्राउंड ਕੀਤਾ ਹੈ, पॉजिटिव ਨੂੰ ਅਸੀਂ सप्लाई ਕੀਤਾ है, गेन ਅਸੀਂ फिर A लेके चले, आउटपुट इक्वल है A मल्टीप्लाई B, गेन मल्टीप्लाई इनपुट गिव्स आउटपुट, आउटपुट सानू गेन ते इनपुट नु गुना करके मिलेगी। पॉजिटिव का इनपुट दवांगे, नेगेटिव ते ग्राउंड करांगे, जो सिग्नल मिलेगा इन फेज मिलेगा। Non-inverting amplifier is a type of operational amplifier which produces output which is in phase with respect to its input। जो आउटपुट है और इनपुट दे फेज विच होगी, सेम फेज होगा, आउटपुट इक्वल टू VA मल्टीप्लाई VE। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से ਇੱਥੇ माइनस आया सी जो कि ਹੁਣ नहीं है, गेन 1 प्लस RF upon Rin। नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का गेन एज कंपेयर टू इनवर्टिंग एम्पलीफायर ज्यादा होता है। कंपैरिजन करते हैं ਅਸੀਂ इनवर्टिंग ओप एम्प ਤੇ नॉन इनवर्टिंग ओप एम्प। इनवर्टिंग ओप एम्प चाहे इनवर्टिंग ओप एम्प है ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੈਗਾ नॉन इनवर्टिंग ओप एम्प, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नेगेटिव फीडबैक यूज ਕਰਾਂਗੇ, लेकिन इनवर्टिंग ਵਿੱਚ वोल्टेज शिफ्ट, नॉन इनवर्टिंग ਵਿੱਚ वोल्टेज सीरीज फीडबैक होगी। इनवर्टिंग केस input and output voltage of this amplifier are out of phase, in case of non-inverting in phase होगी। इन्वर्टिंग ਵਿੱਚ एम्पलीफायर ਦੀ जो रेफरेंस वोल्टेज है वो ਅਸੀਂ इन्वर्टिंग टर्मिनल ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ, नॉन इन्वर्टिंग ਵਿੱਚ रेफरेंस वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। गेन इन्वर्टिंग ਦਾ -RF upon Ri, नॉन इन्वर्टिंग ਦਾ 1 प्लस RF upon Ri। इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देने करके इनपुट रेजिस्टेंस घट जाता है। इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। वोल्टेज गेन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का मे बी 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, एक भी हो सकता है, एक तो घट भी हो सकता है, एक तो ज्यादा भी हो सकता है, पर नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा एक तो ज्यादा होगा। इनपुट इंपीडेंस इज R1, इनपुट इंपीडेंस इज वेरी लार्ज,
नॉन इनवर्टिंग दा इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ओपन एज ए समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर की हुंदा है जो सम करके दिंदा है इनपुट दा। ओपन समिंग एम्पलीफायर और इन सिंपल टर्म एडर, सिंपल अपनी लैंग्वेज विच बोलिए एडर भी कहते हैं। Used to do the summing operation, sum ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। sum ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। summing amplifier ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, in inverting mode ਤੇ non inverting mode। summing amplifier ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡਡ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। जिस पे अप्लाई करेंगे उस पे डिपेंड करेगा इनवर्टिंग मोड है ते नॉन इनवर्टिंग मोड है। दो तो ज्यादा सिग्नल दवांगे ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਮੋਡ ਦਾ। ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਆਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ। ਆਰਐਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸੇਮ प्रोसेस टाइप है जो पहले यूज किया है सिंपल एम्पलीफायर, लेकिन इनपुट तीन दे दिया। मैं तीन का केस लेके चल रही हूँ, दे कितनी भी सकते हैं पर दो तो ज्यादा होंगे, दो या दो तो ज्यादा। ए बी सी आउटपुट मिलेगी सम ऑफ थ्री इनपुट्स ए प्लस वी प्लस वी सी विद माइनस साइन। माइनस शो आउट ऑफ फेस, माइनस आ दसेगा कि आउटपुट ते इनपुट बीच 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस है। Output of the summing amplifier in inverting mode equal to sum of three inputs and 180 degree out of phase with respect to input। मैं फिर रिपीट कर दी है, तीनों इनपुट का सम मिलेगा ते 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिलेगा। ते नॉन इनवर्टिंग मोड विच नेगेटिव टर्मिनल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ग्राउंड करता, पॉजिटिव ते तीन सप्लाई देती हैं, आउटपुट सम ही मिलेगा VA प्लस VB प्लस VC, लेकिन इन फेस होएगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। आउटपुट ऑफ द समिंग एम्पलीफायर इन नॉन इनवर्टिंग मोड इक्वल टू सम ऑफ द थ्री इनपुट्स आर इन फेस, सेम फेस विच होएगी आउटपुट के इनपुट। ओपन एज इंटीग्रेटर। समिंग एम्पलीफायर के बाद नेक्स्ट सर्किट ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ इंटीग्रेशन मैथ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ। इंटीग्रेशन ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ओपन ਦਾ सर्किट यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मैथ ਦੀ इंटीग्रेशन ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ है। दैट इज प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ द वोल्टेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ द इनपुट। आउटपुट जो होगी वो इनपुट का इंटीग्रल होगी। सर्किट देखिए, सिंपल सर्किट शो किया गया, आइडियल ओपन लेके चलते हैं। फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह आरएफ की जगह जड़ी ਅਸੀਂ कैपेसिटर लगा दिए ते साडा जो सिंपल इनवर्टिंग एम्पलीफायर सीगा जो कि ਇੱਥੇ आरएफ लग के बनया सी वो इंटीग्रेटर विच कन्वर्ट हो जाएगा। फीडबैक कंपोनेंट यूज्ड इज ए कैपेसिटर। इंटीग्रेटर विच कंपोनेंट जो फीडबैक है वो कैपेसिटर यूज किया गया है। रिजल्टिंग कनेक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटर। मींस यदि ਅਸੀਂ आरएफ रेजिस्टेंस की जगह पे कैपेसिटर लगा दिए फीडबैक विच ਤਾਂ जो कनेक्शन बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इंटीग्रेटर कहांगे। इनपुट ਤੇ आउटपुट ਨੂੰ कंपेयर करके देखिए, यदि ਅਸੀਂ इनपुट सिग्नल स्केयर वेव दईए आउटपुट ਤੇ ਸਾਨੂੰ ट्रायंगुलर वेव मिलेगी। इस करके इंटीग्रेटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ वेव शेपिंग सर्किट भी कहते हैं। वेव शेपिंग ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Next is differentiating amplifier. Open as a differentiating amplifier. Differentiator. Open circuit that contains capacitor is differentiating amplifier. ओपन सर्किट जो कि इनपुट ते कैपेसिटर लगे, जिसने इनपुट ते कैपेसिटर लगे होवे,
देखो फीडबैक ते RF ही लगे, लेकिन जो R1 या Rin लिखता सी उत्थे कैपेसिटर लगाता। तो जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट से डिफरेंशिएशन विच कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशिएटर बन गया। जो आउटपुट होएगी वो डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट होएगी। डेरिवेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी R पे C पे, रेजिस्टेंस के कैपेसिटर की वैल्यू। ना माइनस साइन शो कर रहे हैं कि इन्वर्टिंग मोड है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आएगा। इनपुट जरी साइन वेव है, साइन का डेरिवेटिव हुंदा है cos, आउटपुट cos होएगी। स्केल वेव है इनपुट, आउटपुट स्पाइक्स आएंगे। इनपुट ट्रायंगुलर वेव है तो आउटपुट रेक्टेंगल या स्केल वेव आएगी। स्लोप पे डिपेंड या डेरिवेटिव जो कंपोनेंट लगाए है रेजिस्टेंस से कैपेसिटर पे उस पे डिपेंड करेगी, रेक्टेंगुलर है या स्केल है। इंटीग्रेटर ते डिफरेंशिएटर के बाद ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਹੈ कंपेरेटर। कंपेरेटर सिंपल इंग्लिश ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। कंपेरेटर मतलब कंपेयर करना, जो कि दो इनपुट्स ਨੂੰ कंपेयर करेगा। कंपेयर करके ਸਾਨੂੰ आउटपुट शो करेगा ज्यादा है कि घट है। It is a circuit compare a signal voltage at one input of the op amp with the non-reference voltage at the other end। अच्छा शुरू तो लेके चल रहे हैं op amp ਦੀ दो इनपुट है, ਉਹਨਾਂ दो इनपुट ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ reference voltage ਦੇਣਾ, ठीक है, जिस नाल ਅਸੀਂ कंपैरिजन ਕਰਾਂगे। जिस सिग्नल ਨੂੰ कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। नॉन इनवर्टिंग कंपैरेटर ਤੇ इनवर्टिंग कंपैरेटर रेफरेंस वोल्टेज नेगेटिव इनवर्टिंग ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ नॉन इनवर्टिंग इनपुट ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ डिपेंड करके ਸਾਡਾ कंपैरेटर दो टाइप ਦੇ हो जाते। कंपैरेटर भी एक वेव शेपिंग सर्किट है जो कि साइन वेव ਨੂੰ स्केयर वेव ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर कंपैरेटर ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ कंपैरेटर ਦੀ ਇੱਕ टाइप है। कंपैरेटर ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਦਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट बन जाएगा। कंपैरेटर ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, लेकिन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈरेटर ਤੇ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। in comparator if reference voltage is zero then known as zero crossing detector। यदि ਅਸੀਂ reference voltage zero लेंगे ਤਾਂ comparator ਨੂੰ zero crossing detector ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डायग्राम ਤੇ इनपुट ਤੇ आउटपुट शो करके ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ आउटपुट मिलेगी ਉਹ देखते हैं। नेगेटिव ਤੇ देखो ਅਸੀਂ reference voltage ਦਿੱਤੀ है, नेगेटिव मीन्स इन्वर्टिंग करंट, पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग करंट। पॉजिटिव ਤੇ ਅਸੀਂ इनपुट ਦਿੱਤੀ है, एनालॉग इनपुट ਦਿੱਤੀ है, बायसिंग वोल्टेज वही है पॉजिटिव या नेगेटिव, आउटपुट। यदि इनपुट रेफरेंस वोल्टेज तो बढ़ होगी, ग्रेटर देन होगी, ज्यादा होगी, तब वोल्टेज प्लस VCC आएगी जो ਅਸੀਂ सप्लाई ਦਿੱਤੀ ਸੀ। सपोज ਅਸੀਂ 15 वोल्ट ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, प्लस 15 ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ -15 माइनस VCC ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ V इनपुट ज्यादा हैगी है, ग्रेटर देन हैगी है, तो आउटपुट आएगी +15। यदि V इनपुट घट हैगी है, माइनस लेस देन हैगी है रेफरेंस वोल्टेज तो तब V आउटपुट आएगी -VCC। मतलब सानू पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज में पता लगेगा कि V इनपुट ज्यादा है कि घट है। ज्यादा हैगी है तो पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, घट हैगी है तो नेगेटिव वोल्टेज आ रही है। पॉजिटिव विच सैचुरेशन मोड, नेगेटिव विच नेगेटिव सैचुरेशन मोड। वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म साइन हैगी है, आउटपुट स्केयर है,
जो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों फिगर दिख रही है, आउट ऑफ फेस दिख रही है, इन्वर्टिंग मोड वाली है। जो राइट हैंड साइड पे दोनों दिख रही है, साइन वेव इनपुट है, स्केयर वेव आउटपुट है, इन फेस है, नॉन इन्वर्टिंग मोड। तो ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओपन मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि बेसिकली एम्पलीफाई का काम किया। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, एम्पलीफाई के नाल मैथ का ऑपरेटर काम कर रहे हैं, जोड़न का, घटान का, गुणा करन का, कंपेयर करन का, इंटीग्रेशन करन का, डिफरेंशिएशन यूज हो रही है। पिन डायग्राम ਅਸੀਂ एक्सप्लेन किया, डिफरेंट आईसी ਕਿਹੜੀਆਂ यूज हो रही है वो देखा। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। यदि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी क्यूरी होवे, कोई भी क्वेश्चनिंग होवे, कोई भी डाउट होवे, मेरे फोन ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ मेल आईडी ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ मी, थैंक यू। बंद हो गए फिर। हेलो 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 मैडम पुनीता मैम, हेलो। हाँ जी हाँ जी मैम, हेलो हेलो हाँ पुनीता जी मैम। बोलिए सर। हाँ, बहुत अच्छा लेक्चर है जी, बहुत अच्छा रहा लेक्चर। थैंक यू सर। हेलो हाँ जी सर। प्रिया है ना, आवाज आई है मेरी? हाँ जी सर आ रही है। हाँ तो हाँ जी सर आ रही है आवाज, बोलिए। ठीक है, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਚੈੱਕ ਪਲੀਜ਼। अपने आप ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਮੈਡਮ अनम्यूट ਜੀ नहीं है ਤੋਂ जी। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी सर बोलिए। हेलो मैम एग्जिट कर दो, स्क्रीन शेयरिंग का एग्जिट कर दो चाहे। शेयर कीजिए ऑडियो शेयर कीजिए। नहीं उधर ही ऑडियो शेयर होनी चाहिए। हेलो इधर तो कर लो, यही तो कर लो, एक बात कर। हाँ जी सर बोलिए। हेलो
Hello. Hello. Participants, please encourage their Hello. Meeting class. Nandun. Hello, sir. Hello, sir. Hello. हाँ जी बोलो बोलिए बोलिए अभी देव वरुण देव ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ मेरा एटीएम मैंने समझ मेरा एटीएम नाम कोई बोल देना ठाकुर हिमांशु प्रताप एटीएम आपका ब्लॉक करना है चालू रखना मैडम बोलो बच्चे हाँ जी बोलिए पूछना है पीसी को बंद करा है पीसी तो लीव कर Punita, can you hear me? Punita मैम हाँ जी सर हेलो पुनीता हाँ जी हाँ जी हाँ चलो ठीक है जी फिर लगा नहीं तो बंद करिए कोई क्वेरी तो है नहीं हाँ जी कमल सर की ठीक कहते है हो सर थैंक यू ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਸ਼ਨ हाँ जी ठीक है जी एंड कर दे जी चलो ठीक है जी सारे का धन्यवाद ठीक है थैंक यू वेरी मच सर ओके ओके थैंक्स